Morning. So let's start with a new topic of science today, which is known as periodic classification of elements. Now, why have I taken this topic randomly? Because कभी ना कभी तो लेना ही था, इसलिए ले लिया. No, guys, I took this topic purposely because there was a demand from the state board students also that sir ये topic उनके इसमें भी है तो क्या आप ये topic पहले करवा सकते हैं because शायद उनके स्कूल में आ रहा होगा and that's the reason why. So technically what we have done till now, we have done acid, bases and salts, we have done metals and non-metals, we have completed chemical equation and reaction, that is 3, and this would be the 4th chapter which is known as periodic classification of elements, जो भी अपन करने वाले हैं. बट हम लोगों ने एक और टॉपिक बीच में से फिजिक्स का ले लिया था विच वाज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने कंप्लीट कर लिया. सो देयर आर 4 टॉपिक्स व्हिच हैव बीन कंप्लीटेड and this is the 5th one which is going in a month, which is not bad considering it's lockdown and technically I cannot make a lecture on more or above more than 40 minutes or 45 minutes, so I'm trying to keep the topics truncated at around 30 minutes 35 minutes anyway. So let's shut my so-called mouth with this jugglery and let's directly come on to this topic which is known as periodic classification of elements. Now before we start this topic, first of all let's understand certain words. जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था and some of them did very nicely commented, sir thanks, at least हमें मतलब तो मालूम पड़ा कि नोवेल का मतलब क्या होता है. याद है गांधी जी के चैप्टर में, तो अब आपको ये भी मालूम पड़ गया कि नोवेल कोरोना वायरस क्या होता है. But anyway, now let's come back onto the part of periodic. What do you mean by the word periodic? Think about it. अब आपके दिमाग में आएगा periodic मतलब सर पीरियड से रिलेटेड कुछ होगा. But what actually do you mean by the word period? आपने अभी तक आपके असेंबली में स्कूल के अंदर आपने वर्ड सुने होंगे पीरियड्स. गेम्स पीरियड है, लाइब्रेरी पीरियड है, इंग्लिश पीरियड है, मैथ्स पीरियड है. What do you mean by the word period then? First question. Okay. So let's focus on to this now. Why am I wasting time on to this particular note of the chapter? Because यदि आपको इसका केवल चैप्टर का मतलब समझ में आ गया, ट्रस्ट मी, आप केवल बस बोर्ड पर देखते रहना, आपका दुनिया में कोई कभी कोई क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकता. It's just simply impossible. Periodic means something which keeps on repeating itself. Periodic means something which keeps on repeating itself. For example, I post lectures on class 10th periodically. इसका मतलब मैं lectures class 10th के ऊपर में periodically मतलब time bound manner में regularly post करते रहता हूँ. Okay, periods in your school. Every single day there's going to be first period, then there's going to be second period, then third period, then lunch, or maybe fourth period and then lunch, and then fifth, and then sixth, and then seventh, and so on and so forth. So this cycle keeps on coming on and on and on, and that's the reason why it is known as period. Okay, so this means periodic. Now coming on to the word, what do you mean by the word periodic? वो तो मैंने आपको बता दिया, that means repetition. अब किस चीज़ का repetition? So वो भी हम बात करेंगे as in properties का. But खैर, classification, of course आपको इसका मतलब मालूम होगा. For example, humans are classified into prima facie, mainly 2 genders, that is known as males and females, and there is now this new category also, there was this new category also, which was known as transgender, okay? But anyway, so there is this gender के अंदर males and females will be the classifications and transgender also. Now, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर classification, but classification का और simple मतलब, as I've always told you and I'll keep on saying that to the end of my life, moms are literally the best managers in the world. They know science, arts, social, everything fantastically. I don't know from which school have they completed their education, but the way, this particular community has in this particular tribe means this particular, character of moms plays the part. It's amazing. You will say, sir, आप बिना मतलब ना कुछ भी इतना. Trust me. Let's see why. Classification का यदि आपको मतलब समझना है, what you need to do is simply go to the kitchen and chapter 1 में आ जाएगा. Trust me आएगा. आप बोलोगे, सर कुछ भी बोले जा रहे हो आप, सर ऐसे कैसे आ जाएगा? I'll tell you how. As soon as you go in the kitchen,
आपने कभी वो देखे हैं हर, और ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि किसी का किचन बहुत अच्छा हो या बहुत कोई रिच हो या बहुत कोई पुअर हो या बहुत कोई डिफरेंट कम्युनिटी का हो, कास्ट का हो, कलर का हो, सबके यहाँ सेम टू सेम। मॉम्स के यहाँ पर देखोगे उनके अपने खुद के एक बनाए हुए शेल्फ होते हैं, शेल्फ्स। पे वेरी वेरी क्लोज अटेंशन, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट मेकिंग फन, ओके, आई एम राइट ऑन टू दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। So there will be n number of racks over there, shelves over there, जिनमें कुछ कुछ सामान मॉम के रखे हुए रहते हैं, शक्कर, नमक, मिर्ची, God knows whatever. I am not that excited, to go to the kitchen every single day, but yes, I see my mom, I've seen literally every lady, doing this. So classification, उन्होंने बहुत अलग अलग ढंग से चीज़ों को क्लासीफाई किया होता है। जो चीज़ें उनके बहुत रेगुलरली काम में आ रही होती हैं वो उनके बहुत पास में होती हैं, कहीं आजू बाजू में। जो चीज़ें थोड़ा सा मतलब दूर में होंगी, इसका मतलब है वो थोड़ा सा रैंडमली यूज में आ रही होंगी, या डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ देयर यूजेबिलिटी, या वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्होंने उसको अरेंज करा हुआ है। शॉकिंगली मुझ जैसा जो कंप्लीटली नर्ड है, जिसको कुछ आता ही नहीं है बनाना, तो आई कैन मेक वेरी गुड बॉइलिंग वाटर। इफ यू वांट टू हैव, यू कैन कम डाउन समडे टू द सेंटर एंड आई कैन कुक फैंटास्टिकली बॉइलिंग वाटर एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेल्सियस, और मुझसे अच्छा कोई बॉयल कर भी नहीं सकता। बट एनीवे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। सो नमक एज एन कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, NaCl, एंड शक्कर, कभी कभी वो जो एकदम फाइनली ग्राउंडेड एंड जो क्रश शक्कर होती है, पिसी हुई शक्कर, उसमें और नमक में कभी कभी कुछ डिफरेंस दिखाई नहीं देता। बट बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपकी मॉम ने नमक की जगह शक्कर डाल दिया हो। तो दे आर क्लासिफाइंग दीज थिंग्स इन स्पाइट, दोनों के दोनों व्हाइट कलर के होते हैं, बहुत क्लोज रखे होंगे, बट स्टिल शी नेवर एवर messes it up. How? Classification. Another simple example of classification could be आपकी खुद की अलमिराज जो मॉम जमाते हैं, उसमें कभी आपने देखा है जो आपके कहीं शादी वगैरह के या पार्टी वगैरह के जो कपड़े होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, एंड जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है वो अलग रखी रहती है, जो घर के कपड़े होंगे वो अलग रखे रहते हैं। दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आर वी रीडिंग दिस चैप्टर, because we need to understand that how these elements are being properly classified so that इनको पिक करना आसान होता है, इनको ढूंढना आसान होता है। इमेजिन करो कि आपको सुबह सुबह स्कूल के लिए लेट हो रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन यू जस्ट फाइंड इट आउट, और यू फाउंड इट आउट राइट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द अलमिरा। आपको मिला उसके अंदर कि आप शादी के कपड़े किसी के जो पार्टी वार्टी में पहन के जाते हैं आप वो पहन के जा रहे हो। ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि मॉम ने बिल्कुल ढंग से लगा के रखा होगा। एंड आई एम स्टिल टेलिंग यू गाइस, हेल्प योर मॉम प्लीज, इट्स द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू। एनीवे, सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये सारी की सारी किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ना हुआ क्या था पुराने टाइम पे जब ये डिस्कवरी चालू हुई थी, डिस्कवरी का मतलब जब जो चीज़ें पहले से होती हैं बट आपको मिलना चालू हुई, तब एक एक क्रेजी सा एक ट्रेंड बन गया। जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड चलता है ना, आई कैन सी पीपल एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम नॉट टू सोशल काइंड ऑफ अ पर्सन। आप बोलोगे सर सोशल नहीं हो तो फिर यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे कैसे भेजते हो? सी आई एम ओनली डूइंग दिस फॉर द पार्ट ऑफ स्टडीज, सो यू वोंट फाइंड मी एनीवेयर ऑन द नेट एक्चुअली, because I'm just simply not interested. But what I see and I find very amusing is that कई जो बच्चे होते हैं वो कभी कहीं साइड में खड़े होंगे and they are making this funny videos on TikTok or on Insta or on Snap or on something. So the part is that what actually are they doing? That's a trend. अब आते हैं दोबारा से इस चैप्टर पे। Let's summarize all of these words. So this chapter will be dealing all about the word elements, because पुराने टाइम के ऊपर में जब ये elements डिस्कवर होना चालू हुए थे तो then people also needed to arrange them, कि कोई तो किसी के बाद में आएगा, कोई तो किसी के पहले आएगा, किसी की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, कोई किसी की तरह दिख रहा है, कोई रिएक्शन सेम दे रहा है, and so on and so forth. And that's the reason why there was an urgent need, a dire need of classification of elements. So let's move on to the part of the word matter. What do you mean by matter? Anything which has got space, which has got mass and which occupies some volume will be known as matter. आपको मालूम है 5 तरह के मैटर होते हैं. So there is going to be this PEC, post-Einstein condensate. There is going to be plasma, there is going to be liquid, solids and gases, or solids, liquid and gases, and BEC and plasma. But right now we are not going into that. We are coming back onto over here.
मैटर के अंदर भी आपने कल बोल रहा हूँ सॉरी, आपने लास्ट टाइम में पढ़ा था, देयर कैन बी प्योर सब्सटेंसेस एंड देयर कैन बी इम्प्योर सब्सटेंसेस. सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस व्हाइल मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस. राइट. एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स थ्रू आउट देयर बॉडी. जैसे गोल्ड की शीट में आपको केवल गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलेंगे. कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 elements but in a fixed ratio. Mixtures are nothing else but they are heterogeneous, different kind of. Now, elements अभी तक कितने डिस्कवर हो चुके हैं? So total there have been 118 elements which have been discovered so far. Okay, so remember this term, very important. 118 elements have been discovered so far. Elements are those substances which consist of only one kind of atoms throughout. Now, सबसे पहले जब एक क्लासिफिकेशन का पार्ट आया कि एटलीस्ट क्लासिफाई तो करो कि कौन कैसा है, कौन क्या काम करेगा, कौन किसको कहाँ रखोगे. देन अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज डन बाय अ साइंटिस्ट नोन एज लेवोइसियर. ओके, लेवोइसियर. सो लेवोइसियर ने और भी डिस्कवर किया था लाइक द हाइड्रोजन, but anyway that was not being done by Lavoisier. But anyway, coming back onto the part of the earliest classification was being done by a scientist known as Lavoisier. And to all those students जो मेरी ही स्किन निकालते रहते हैं बैठ के, सर आपने स्पेलिंग गलत लिखी थी, मैंने आज बुक से देख के स्पेलिंग लिखी है, हाँ तो गलत करके दिखा. खैर, so earliest classification was the Lavoisier and it was being classified into 2 parts. And that matter is metals and non-metals. तो एलिमेंट्स को उन्होंने 2 चीज़ों में डिवाइड किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जबकि आजकल आप देखोगे जो मॉडर्न एटॉमिक टेबल चल रही है उसमें 2 के बजाय और भी आ चुके हैं, विच इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. बट एनीवे उस टाइम पर 2 ही थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बट ये क्लासिफिकेशन बहुत ही छोटा सा क्लासिफिकेशन था बिकॉज अब धीरे धीरे मेटल्स में भी बहुत तरह के मेटल्स डिस्कवर होना चालू हो गए थे, लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नॉन मेटल्स के अंदर भी बहुत सारे नॉन मेटल्स बनना चालू हो गए थे. फॉर एग्जांपल मिलना चालू हो गए थे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो केवल ये 2 कैटेगरी को क्लासिफिकेशन करना बन नहीं पा रहा था, तो दैट्स द रीजन व्हाई नोबडी बिलीव्ड इनटू दिस काइंड ऑफ सिस्टम. Then came another scientist in 1817, and his name was Daubernier. So Daubernier actually gave a law which was known as the law of triads. It's a very important term, guys. Do remember this. So 1817 में Daubernier ने एक लॉ पास किया मतलब एक लॉ बनाया which was known as law of triads. ट्राई का मतलब 3, ट्रायड्स मतलब उसने बोला कि यदि मैं 3 एलिमेंट्स के गुच्छे बनाता हूं, ग्रुप बनाता हूं, पेयर्स बनाता हूं, और यदि मैं तीनों के एटॉमिक मासेस लेता हूं तो फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले एटॉमिक मास को यदि मैं ऐड करूं और डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में जो आंसर आता है वो सेकेंड वाले के बराबर आएगा. अब इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स रीड इट. Triads are a group of 3 elements. They are arranged in increasing atomic masses such that the middle element had an atomic mass almost the average of the other 2. जो बाकी 2 एलिमेंट्स हैं उन दोनों एलिमेंट्स का यदि मैं एवरेज निकालता हूं, प्लस करके डिवाइड करता हूं 2 से, so it will be coming as the middle. Let's see. सो ये देखो, ये पहला ट्रायड था. देखो 3 का गुच्छा है इसलिए इसको ट्रायड बोलते हैं. ट्राई मीन्स 3. ये है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. सो लिथियम हैज गॉट द एटॉमिक मास 7, sodium has got the atomic mass as 23 and potassium has got the atomic mass as 39. Now increasing order, that's also true. Now if you can see this, 7 plus 39, फर्स्ट एंड द थर्ड वाले को ऐड कर लो. 7 plus 39 comes out as 46. 46 upon 2, एवरेज ऐसे तो निकालते हैं, this plus this upon 2. 46 upon 2 will come out as 23. आंसर आ चुका 23. तो डॉबरेनियर ने बोला दैट मेरे इस लॉ के हिसाब से यदि आप चलोगे तो हम सारे की सारी चीजों को अरेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में. लेट्स सी.
calcium, strontium and barium. Calcium, strontium and barium. Calcium has got the atomic mass as 40, barium has got the atomic mass as 137. 137 plus 40 करोगे तो आ जाएगा 177. 177 by 2 करोगे तो 2 8 16. Again 1 2 8 16. 88.5 approximately आएगा. So it is almost equal to 88. So this plus this upon 2. Okay. So first element and third element का numerical average निकालना है. That should be equal to the middle element. Next, chlorine atomic mass 35.5. Iodine 127. 127 plus 35 is 127 plus 30 is 157 plus 5 is 162.5. Correct? 127 plus 35.5 is 162.5. तो 162.5 को यदि आप 2 से डिवाइड करोगे, so it will be approximately coming as 81 point something, which is near about close to the actual atomic mass that was 80. So डॉबर्नियर का लॉ या ट्रायड था क्या? एटलीस्ट उसने बोला कि 3-3 के गुच्छे बनाओ, अरेंज करो इनको in the increasing order, and the average of the first and the third element will always give you the average of the second element. Now what are the merits of this डॉबर्नियर? अब ध्यान रखना, हर चीज के बारे में आपको कुछ अच्छी चीजें भी मालूम होनी चाहिए और कुछ बुरी चीजें भी मालूम होनी चाहिए. So जो भी हम अच्छे पॉइंट्स की बात करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे मेरिट्स, और जो भी कोई डिसएडवांटेजेस होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे डीमेरिट्स. So what was the merit of Daubernier classification? Daubernier classification gave a much more broader idea, ज़्यादा बड़ा idea था as compared to Lavoisier classification, because उसके अंदर काफ़ी सारे elements cover up हो रहे थे. Okay. What do you think was the other merit? Daubernier could successfully, make around 3 or 4 triads or the group of triads, and it could successfully give justification for these materials. तो उसका उसने मास बता दिया लोगों को. But now let's talk about the word demerits, disadvantages. आखिर डॉबर्नियर के मॉडल को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? Why? The first demerit was Daubernier could not proceed with all the elements beyond 40. So 40 के आगे डॉबर्नियर कभी जा ही नहीं पाया. Now since he could not achieve a triad above 40, so elements तो 118 तक है. तो डॉबर्नियर का ऐसा थोड़ी होता है, कभी भी कोई साइंस या कोई साइंटिस्ट बनाता है तो केवल एक में ही लगेगा या 4 ही केवल ग्रुप्स में लगेगा, वो तो पूरे के पूरे टेबल में लगना चाहिए. वो लगा ही नहीं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दैट वाज डिमेरिट. सो डॉबर्नियर कुड नॉट सक्सेसफुली मेक एनी ट्रायड बियॉन्ड 40. Daubernier could not say anything about the group like the zero group, or which is also known as the inert group gases. So Daubernier ने ये जो आपका हीलियम, नियॉन एंड ये सारे वाले जो इनर्ट गैसेस थे उसके बारे में कोई बात नहीं करी थी. ओके, सो दैट वाज द प्रॉब्लम विद डॉबर्नियर. अब बढ़ते हैं, डॉबर्नियर का मॉडल फेल कब हुआ? ध्यान रखना, आपकी कोई भी चीज फेल तब होती है जब आपसे बेटर कोई करने के लिए आ जाता है. नाउ डॉबर्नियर का मॉडल इसलिए फेल हुआ बिकॉज आई टोल्ड यू द रीजन. नाउ डॉबर्नियर के बाद में देयर वाज दिस नेक्स्ट साइंटिस्ट हु वाज नोन एज न्यूलैंड. Now Newland ने अपना एक नया लॉ दिया, and that law was being named as Newland's law of octaves. So Newland ने एक नया लॉ दिया which was named as Newland's law of octaves. Newland तो उसका नाम था, लॉ का मतलब होता है एक नियम, एक कानून, and octaves का मतलब होता है 8. Oct means 8. Okay? So octaves का मतलब 8. ना यदि आप में से कोई म्यूजिक पढ़ता है या कोई म्यूजिक सीख रहा है तो उसको ये वर्ड समझ में आ जाएगा. सा रे गा मा प द नी अगेन सा. सो लेट्स सी दिस. इट्स समथिंग लाइक दिस. सा रे गा मा पा द नी and then sa again. So if you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So shockingly न्यूलैंड ने बोला कि यदि आप म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली हर 8वां एलिमेंट
पहले वाले की प्रॉपर्टी से रिजेंबल कर रहे हैं। लोगों को समझ में ही नहीं आया ऐसे कैसे हो गया, तो उसने बाय द वे पूरा का पूरा टेबल बना करके दिखाया एंड देन ही सेड दैट सी every eighth element is matching which one? The first element. Now shockingly this particular theory also did not work. Now merits तो इसके of course अच्छे थे because this was a much better table as compared to Dauvergne triads. इसके अंदर around 45 and 48 तक ये भाई साहब पहुंच गए थे न्यूलैंड अंकल, so no problem with that. But then comes disadvantages or demerits. What were the demerits of Newland's law of octaves? The main demerit of Newland's law of octaves was, as usual, he could not reach anything beyond 45 and 44 के आगे। कैल्शियम के आगे मतलब 20 के आगे या उसके आगे मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम टू सेम मैच ही नहीं हो रही थी। न्यूलैंड ने बोला यदि आपने हर एक एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लगाया और हर 8th एलिमेंट को यदि आपने हर 8th एलिमेंट को यदि आपने फर्स्ट के नीचे लगाया तो उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, बट जब लोगों ने अपनी टेबल बनाई तो एक्चुअली में वो केवल एक रो या दो रो तक ही बना पाए एंड देन थर्ड या फोर्थ रो तक बना ही नहीं पाए, एंड दैट्स द रीजन व्हाई द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल हो गया। Then looking at this, there was this another scientist who was known as the great, the godfather of modern periodic table, or I mean to say the periodic table. उसका नाम था Mendeleev's. Okay, so Mendeleev's periodic table. Now Mendeleev was something who was thinking out of the box. कैसे? Mendeleev ने बोला ये चल क्या रहा है आखिर, मतलब पहले आप बोल रहे हो केवल 2 कैटेगरी में, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं 3-3 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे, मैथ्स का एवरेज करो, फिर आप बोल रहे हो सारे गामा, अरे हम साइंस कर रहे हैं, ये सर्कस चल रहा है। सो मेंडलीव सेड लेट्स नाउ चेंज द पीरियोडिक टेबल एंड लेट्स मेक द पीरियोडिक टेबल इन सच अ वे कि बस वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और जिसकी प्रॉपर्टीज मैच करती जा रही हैं उनको आप उसके नीचे लगाते जाओ। सो व्हाट मेंडलीव सेड वाज that the properties of elements, जो भी properties हैं elements के, वो मैच इसलिए करते हैं क्योंकि उनका atomic mass number same period शो करता है। Properties of elements are periodic functions of their atomic masses. जिन भी elements की properties same होती है इसका मतलब है वो एक ही ग्रुप के elements होंगे, and that was Mendeleev. So Mendeleev ने सिंपल बोला why can't we just arrange elements onto the increasing amount of atomic masses, and लोगों को लगा हाँ ये भी तो कर सकते हैं, तो उसने करना चालू कर दिया। Now Mendeleev का major advantage, he arranged all the 63 elements properly. Mendeleev was pretty futuristic also. Second point, Mendeleev ने purposely अपने टेबल के अंदर कई जगह पर गैप्स छोड़ दिए थे। So he left certain gaps in the periodic table. Why? Because he knew कि आगे जाकर के कोई एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो उसके अंदर मैं ये वाला एलिमेंट डाल दूंगा। इनफैक्ट जब पूरा का पूरा ग्रुप नंबर 18 डिस्कवर हुआ तो मेंडलीव को बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, बिकॉज उसने ग्रुप नंबर 18 को साइड में पूरा का पूरा क्या कर दिया, अटैच कर दिया, नो प्रॉब्लम। मेंडलीव ने ना जो टेबल बनाया था उसमें कुल मिला के 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे। व्हाट डू यू मीन बाय रोज? यदि आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो जो भी ऐसे में एलिमेंट्स आते हैं दे आर नोन एज रोज एंड दीज आर हॉरिजॉन्टल रोज, और इसने उनको नाम दिया पीरियड्स का। सो व्हाट आर पीरियड्स? द हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। देन उसने फिर जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको ऐसे में भी अरेंज करना चालू किया, विच इज नोन एज वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल को पीरियड्स। So how many horizontal rows were made? He made 7 horizontal rows. उसने 7 इस तरह के periods बनाए पूरे। Then comes कितने उसने by the way vertical column बनाए थे? 8, और उसने उनको नाम दिया as group number 1, group number 2, group number 3, group number 4, group number 5 and so on and so forth. Now group number 1 to group number 7 जो भी जो groups थे इन सब में दो फर्दर मोर क्लासिफिकेशन थे जिसके अंदर उसने एलिमेंट्स को अरेंज करना चालू किया था। दे वर नोन एज द सब ग्रुप्स ए एंड सब ग्रुप बी। ओके,
So we will leave it over here, this part, and we'll continue with the demerits. Why did Mendeleev periodic law failed? What came after Mendeleev periodic law? What did Moseley as a scientist said? Then we'll be talking about the word trends. So this might cover up in 2 more lectures. समझ जाओ इस संडे को ये भी चैप्टर आएगा. Thank you guys so much. Enjoy. Bye bye.